जग में सबसे ऊंचा तेरा नाम है, नारी तू महान है। आज महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में ब्रिटिश काउंसिल केजी मार्ग दिल्ली में दिल्ली दूरदर्शन चैनल के लिए एक नए सीरियल को लॉन्च किया गया, जिसका टाइटल है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सीरियल महिलाओं की समस्याओं पर आधारित है। आज के इस दौर में भी पुरुष समाज महिलाओं का कैसे उत्पीड़न करता है, पुरुष समाज की सोच के बारे में इस सीरियल में बताया गया है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन श्री त्रिपुरारी शरण और उनके साथ साथ कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया, जैसे शबाना आजमी, शर्मिला टैगोर, शाहिदा हमीद, अजय चौधरी। इन सभी ने इस मौके पर अपने अपने विचार रखे। The most common way people give up their power is by thinking that they don't have any. All of us in this room tonight have a lot of power, perhaps more power collectively than we realize. And the women of India have a huge amount of power, and the women of the world have an almost infinite amount of power if they can exercise it fully. Women to celebrate their being a woman, and the men to celebrate all the women they have around them. The focus of our attention has been women, and that too young women and adolescents. After extensive research and discussions with the creative genius of Firoz Abbas Khan, in 2011, we decided that entertainment education across multiple media platforms could be the catalyst for change for women and girls in India. I will add the absolute beautiful words of Kaifi Azmi, which is, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। Sneha, coming from a small town, is, a lot of people will identify with her. She reflects the aspiration of a lot of young people. And all these subjects we know this is happening, sex selection, all the child marriage, all that is happening. So I think, the time is right, and I'm very hopeful. I am particularly inspired by the kind of work that Firoz has done, and I think it's very heartening to see the beginning of the serial in the way you have begun, Firoz, because as you have pointed out, as you know, I have straddled the worlds of cinema as well as television, and I know for sure that television audiences expect something very different from what they expect out of cinema. Firm believer on the fact that economic empowerment, and I've seen it at the village level. I'm not just speaking about corporate India and young women who work for me or with me, but really through the work of Seva, how important it is to give that economic empowerment into the hands of a woman. She can be an illiterate woman. I've seen it at Mandeshi Bank. I've seen it again and again with microfinance institutions we've supported. And that woman, when she begins to earn, becomes a real change factor within the family. And what used to happen, that women used to be beaten up, brought to the hospital. So they would say, we would stitch them, repair them and send them back, and they would come back again. So they realized that the issues of health are very clearly related to other social behavior, and that needs to be linked with that. And so they went out and said, can we do a television program where it tries to affect the social behavior, the behavior between men and women, the behavior of how you treat your wife, how you treat your daughters, how you deal with domestic violence, and of course they were facing a serious problem with AIDS. So how to do all that? So I thought that maybe the two different cultures, two different times in history of what's happening, but yes, PFI and Soul City were pretty much close in terms of health issues. So that was one thing. And the other thing was that that there was something very beautiful about what they were doing, and I got a sense that what they were doing and what I had to do
was simply add the dramatic to the authentic. I was not going to go on, trying to sort of take from anywhere and, the kind of television program. No, we take the authentic and we understand this authentic is fine, but it's not a documentary. We take the authentic and then push the drama. मैं कुछ भी कर सकती हूँ डायरेक्टेड बाय फिरोज खान एक ऐसी कहानी है जिसमें औरतों के स्वास्थ्य के जो पूरे मुद्दे हैं उनको एक बहुत दिलचस्प तरीके से पेश किया गया है. तो चाहे वो सेक्स सिलेक्शन की बात हो, चाहे वो बहुत जल्दी जो शादी हो जाती है उसकी बात हो, चाहे औरत के रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मेन स्ट्रीम में बात नहीं किया जाता है. लेकिन ये तमाम दुनिया में हमने देखा है कि जब मेक्सिको में और साउथ अफ्रीका में और ब्राजील में इस तरह के टीवी सीरियल्स हुए हैं तो उनकी कामयाबी की वजह से लोगों का जो नजरिया है इन मुद्दों पर वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया. मैं कुछ भी कर सकती हूँ एक महिला की क्षमता के बारे में है और लड़कियों के भविष्य के बारे में है. जब उनको अपनी जिंदगी के जो फैसले हैं वो खुद कर सकती हैं और उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से उनकी परवरिश होती है उनके परिवार में, वो चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे वो लड़की के पोषण की तरफ से लापरवाही हो, चाहे उसके स्कूल की जो व्यवस्था हो वो ना हो, चाहे उसकी अर्ली मैरिज हो, चाहे अर्ली प्रेगनेंसी हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, जब औरत को सही तरीके से एम्पावर शुरू बिल्कुल बचपन से सोशलाइज किया जाए और उसके इर्द गिर्द जो लड़के हैं उनको भी सोशलाइज किया जाए तो वो महिला जो है वो कुछ भी कर सकती है. यही इस सीरियल का एक बहुत बड़ा पैगाम है. आज का सामान है, गिरा मत देना. डॉक्टर स्नेहा, अगर आप एक वकील को कुली बना देंगी तो सामान तो गिरेगा ही. ये सब कुछ तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है या सारे मोहल्ले वालों के लिए? इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है कि स्त्रियों को आगे लाया जाए और हम चाहते हैं कि इस सीरियल के थ्रू हम सारे उन लोगों के पास पहुंचें जो अभी तक आगे नहीं आ पाए हैं और जिस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करें. आज हमारा अपना एक निजी और आधुनिक अस्पताल है जिस पर हमें गर्व है, लेकिन मानवता अस्पताल की नींव पैसों से नहीं सिद्धांतों से बनी है. यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं. आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इंसान हैं, मरीज हैं, बस. Extremely powerful and important concept for women, particularly in India, that we have this amazing dichotomy that on the one hand you have a woman who can be Prime Minister. We worship women as goddesses, but at the same time women are hugely exploited in the home, in work, in public spheres. So I think this is a very important theme for the serial to show that women too can achieve pretty much what men can achieve and in some ways achieve even more because they bring to what they do very unique and special qualities. And I think it's wonderful for the Population Foundation of India to have introduced this very idea on television. कहानी एक डॉक्टर स्नेहा की है जो शहर से अपने विलेज में आती है, अपने गांव में आती है वहाँ के लिए सुधार लाने के लिए और कई बातें जो उसके साथ बीतती हैं अपने गांव में जो उसको खींचती हैं उस तरफ कि उसकी वहाँ पे एक लड़की का देहांत हो जाता है क्योंकि उसकी अबॉर्शन कराते हैं क्योंकि लड़की पैदा होती है तो वो उसको रिश्तेदारी है और उसको खींच लाती है गांव में और वहाँ से उसकी शुरुआत होती है कि ये डॉक्टर है और कई के कुछ भी कर सकती है और ये ना कि सिर्फ डॉक्टरी है पर और जो बातें होती हैं जो गांव में होती हैं ये हर चीज में शामिल होती है. एक फैमिली की कहानी है जहाँ पे और भी बहनें हैं, भाई है जो भाई नाकाम है, कुछ नहीं करता है. सत्यनारायण की कथा के लिए जो सामान लाना था वो लेते आना. वो
अरे लेकिन उसमें तो अभी समय है, और वैसे भी स्नेहा हफ्ते भर बाद आने वाली है ना। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है, और तुमको जो कहा जाए वो कर दो। फिर ये समझ में नहीं आता कि तुम हर बात को कल के लिए क्यों टाल देते हो। पैसे दे देते तो मैं ला देता। पैसे? हाँ, मेरी पेंशन में से आधे पैसे पहले ही दे चुका हूं। कहां गए वो पैसे? घर का राशन अभी तक नहीं आया है, पूजा का सामान नहीं आया है, सरकार गए ना वो पैसे? नहीं, वो खर्चा पानी देना पड़ता है ना बाबूजी। वो सरकारी नौकरी के लिए तो लाइन लगी है और पैरवी करवा रहे हैं हम तो। लाज शर्म तो सब तुम बेच खाए हो। पैसे के पैसे डकार गए, ऊपर से झूठ बोल रहे हो अपने बाप से। ठीक है बोल रहा है वो, जमाना बदल गया। आजकल बिना जेब ढीली किए ना नौकरी नहीं मिलेगी। स्नेहा के पैसों से घर का खर्च चल रहा है। अपनी बहन की कमाई पर कब तक पलते रहोगे बेटा? कुत्ते हैं हम जो कभी बाप की रोटी पर पले तो कभी बहन की। दम घुटता है मेरा इस घर में। सब मुझे ओछी नजरों से देखते यहाँ पर, कोई इज्जत नहीं मेरी यहाँ। बचवा, सुन रहे? जब तक महिलाओं को समाज में आदर व सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, तब तक कोई भी देश व समाज तरक्की नहीं कर सकता है और न ही परिवार में अच्छे संस्कार उत्पन्न हो सकते हैं। पुरुष समाज को आज के इस दौर में अपनी सोच को बदलना होगा, तभी हमारा देश व समाज सही मायने में विकास कर पाएगा।